Good morning, class. Welcome to this lecture of CSA. Now, today we will be starting the fourth unit. This PPT of my introduction, I have just written it. This is just for the basic purpose because now onwards we have changed a little bit format of the PPTs to make it uniform. So, here is certain information you already know that my name, my educational qualification, name of the subject, and so on. Okay, so we are starting the fourth unit, that is structured query language, SQL. So we have seen a lot of it before in the very first unit, that is DBMS. In the database management system unit itself, we have seen a lot of things related with SQL. Yet we'll go through them one by one. So what is basically a structured query language? It is a standard database language which is used to create, maintain and retrieve the relational databases. Create, maintain, retrieve relational databases. So here are four words, that is create, maintain and retrieve. So it is creating the database. So that is you can create database, then you can maintain and retrieve. So and which database we are talking about? Relational database. So this SQL is basically a language it is used in relational database. It stands for structured query language. So wherein you can create tables, you can retrieve the data. So here you can say here you can create the table, you can retrieve the data and you have maintained the data. It is case sensitive, but it is recommended to use keywords like select, create, update, etc. in capital letters. It is a case sensitive, but when we use these commands like select, update, create, we use them in capital letters and other things in small letters. We can write SQL commands in double hyphen. So if you have something, we can write them double hyphen. Double hyphen will not carry any specific values. That means double hyphen में आप जैसे कि मैंने आपको एक प्रोग्राम लिखने का बोला and you are writing the syntax. So if you are writing the double hyphen, in the double hyphen it will be taken as a comment. So that will be taken as a comment. So it will not be considered as a part of a program, but it's an extra information that you have to provide or whatever you have to write there. So it will be considered as a comment, double hyphen. It is a programming language for relational databases. And what are the relational databases? We have seen a lot of relational databases. That is, we know there are a lot of relational databases like MySQL, Oracle, Sybase, SQL Server, Postgre, etc. So there are so many databases. We already know some companies have their own database like IBM. We have already discussed that in the previous lectures. That is in the very first lecture in the lectures of the very first unit. So this is basically used in programming language for relational databases. And we know what do you mean by relations mean that we are making tables. Relations mean that we are making tables and then there are relations between the tables like primary key, foreign key and so many things. So for that particular database we are using this structured query language, that is for relational database, that is for RDBMS. Non-relational databases like NoSQL, MongoDB, DynamoDB, etc. they do not use SQL. Where there is no non-relational databases, so we are not dealing with non-relational databases. We are generally talking about relational databases only, because majority of the work of the database it is done relational database only. So where there is no database, no relational database, then this SQL cannot be used. So no relational database means you are not storing the data in the form of a table or in the form of a relation between the tables or in the form of relation between one and another type of data. So if there is no relation between them, that means there is no relational database, then in that case you are not going to use this language, use this query language, that is SQL, structured query language. Although there is an ISO standard, but most of the implementers vary in syntax. Queries that work in SQL do not work in MySQL. That is an entirely different concept we will be seeing when we are going through the actual practical work. So here you can see relational database means the data is stored as well as retrieved in the form of relations, tables. We already know that. Relational means the data is stored in the form of tables and also it is retrieved in the form of tables. So that is what we call as relational database. Now there is one table that the name of the table is student and we have stored a certain data into it. So that is what we are saying. Table student shows the relational database with only one relation called student, which stores roll number, name, address, phone and age. So there is one table. Here you can see there is one table and the name of the table is student. Name of the table, or you can say the name of the relation. Only one relation, that is student. One relation means only one table, that is only one table. The name of the table is student, or only one relation, table or relation, one and the same thing. So here there is just one table or one relation named as student and these are the particular values and attributes of it. So you can see what are the roll number, name, address, phone and age. So these are the certain attributes
and the values of those attributes are 1, 2, 3, 4, 5 in roll number. Then name is Akash, Akshay, Arti, Bhavana, address Amravati, Akola, Akot, Amravati, and mobile number or phone number and age. Now there are some basic terminologies. We have already gone through them, but we are just revising here. What are the basic terminologies for table or relations? Tuple. Each row is known as tuple. We already know. This particular rows, they are called as tuples. So here there are 1, 2, 3 and 4 tuples for this particular relation student. Attributes are the properties that define a relation. Example, roll name, roll number, name. So these are the attributes. What are the attributes? Roll number, name, address, phone, age. These are the specific attributes. So what are the number of attributes? 1, 2, 3, 4, 5. Roll number, name, address, phone number, age. That is 1, 2, 3, 4, 5. So total we are having 5 attributes. Degree. The number of attributes in the relation is known as the degree of the relation. The student relation defined as above, degree 5. So that is the total number of attributes, they are 5. So degree of attribute is 5. The degree of this particular table is 5. That is the total number of attributes that we are having in this particular table. And what are they? Roll number, name, address, phone, age. So these are the attributes and total number of them is the number of attributes, it is 5. So that is called as degree of the table. Then cardinality. So we have already seen cardinality in ER, entity relationship modeling. So here it is defined very clearly. The number of tuples in relation is known as cardinality. The student relation defined above has cardinality for the number of tuples in a relation. So we are having 1, 2, 3 and 4 tuples. So we directly say that the cardinality is 4. Now we in the entity relationship modeling we have seen the cardinality in mapping cardinality, that is a concept, but here you can clearly see the cardinality is defined as the number of tuples in a relation. The student relation has cardinality 4. Now column represents the set of values for particular attribute. The column roll number is extracted from relation student. Column represents the set of values. Now here you can say column represents the set of values. So this is one column, this is another column, this is another column, this is another column, this is another column. So what is this column is representing? It is representing a set of attribute. And what is that attribute? That attribute is roll number. So this particular column is representing this set of attribute, that is roll number. So what is this column doing here? This is representing another set of attributes. So what is other attributes? Name. So this column is representing this attribute is name. So this column is representing the attribute name. So this thus each and every attribute is representing each and every column is representing a specific attribute. So we already know what do you mean by tuple, what do you mean by attribute, what do you mean by degree of a table, what do you mean by cardinality, and what do you mean by column. Now what are the basic types of structured query languages? We already know structured query language SQS, it is combining of, it consists of 3 things: DDL, DML and DCL. DDL commands, DML commands and DCL command. DDL means data definition language. So data definition language, so what is basically definition means? It allows users to define data and their relationship. It is mainly used to create, it is also used to specify structure of each table, set of associated values with each attribute, integrity, constraint, security and authorization. So what does basically a DDL command does? DDL means data definition language. So here you are defining what are the contents of a particular table or a relation, what are the basic constraints on them, who is authorized to do what. So that is all you are specifying, and what are the relationships between them. So that is the definition of a particular table. And here are the different commands that are being specifically used to create the database instance. That means we use a command create. Instance means it is instance, here we instance means table itself. Instance you take it as a table itself. Instance को आप relation ही समझो, टेबल ही समझो. अगर आप डाटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो आप ऐसा समझो कि आप टेबल ही क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए टर्म कमांड है क्रिएट. टू अल्टर द, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, कि ये हमने ऑलरेडी देखा है, सिर्फ हम इसको रिवाइज कर रहे हैं एक बार, और इसका फिर हम एक्चुअली वर्किंग देखेंगे. जैसे इसमें से कुछ कमांड का सम बेसिक कमांड्स वी आर गोइंग टू सी टुडे. सो टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, अल्टर. टू ड्रॉप द डेटाबेस इंस्टेंस, ड्रॉप मतलब आपको टेबल ड्रॉप करना है, तो उसको ड्रॉप करना है मतलब उसको कि उसको निकाल दो, उसमें से बाहर डाल दो. तो डिलीट द टेबल्स इन अ डेटाबेस. अब डेटाबेस में टेबल्स डिलीट करना है तो ट्रंकेट करना है. ड्रॉप करना मतलब उसको बनाया था बट उसको डिस्कार्ड करना है सपोज.
To rename the database instance, we have command rename. So create, alter, drop, truncate and rename. Now it is but obviously that by the name itself we understand. If it is create, that means it is going to create something. So that is a create command. To alter, if it is altering the structure of database, then it is alter. If it is dropping the instance, it is deleting the table, and likewise renaming. So this is how the name, the particular command that has been given, their name itself indicates what is the purpose of that particular command. So if you know, if you just by the name you can guess if it is a create command, it will be used for creating. Now what are the integrity constraints, domain constraints? So we have already know values, they must be associated with attributes. So attributes means if you provide certain attribute, that is name. Now name is an attribute which is having certain values. Suppose the value is in alphabets, so it must be associated. Values must be associated, they cannot be null. They cannot be null, means there cannot be no anything that when you are providing phone number, any value, and you have to provide them. If you do not provide them, they will be null and void, but there has to be certain value. Referential integrity, values must be same in relations. Exactly. So if you the same in relations means in one, if for one बेसिकली फॉर वन रो, सपोज आपने एक रो में आपने नाम की वैल्यू कोई भी नाम लिखा है सपोज अल्फाबेट्स में, और दूसरे रो में आप इंटीजर में ऐसे दे रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा. देयर मस्ट बी एन इंटीग्रिटी एंड वैल्यू मस्ट बी सेम इन रिलेशंस. जैसे इस टेबल में आप अगर एक प्राइमरी की यूज़ करते हो और वही टेबल में आप उस अगले टेबल में उसी की को एज ए फॉरेन की यूज़ करते हो, तो वो दोनों जो है उनका सेम होना चाहिए इन वैल्यूज़ इन रिलेशंस. मतलब जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या बोलेंगे कि दे मस्ट बी हैविंग सेम वैल्यूज इन certain relations. Assertions is any condition that a database must satisfy. Now assertions, so basically we are not come to this thing assertions, but when we'll see the command then we'll understand. कुछ ऐसी condition है that database must certify कि उनको satisfy करना ही पड़ेगा वो conditions. Authorization और ये conditions, अब देखो हम क्या कर रहे हैं basically when we are making a table, तो at the time of making a table you are providing all these things. See what is the data type, what are the contents of the table, what are their data types, that who is having the authority to access them, and what are certain things that are important, must, they have to be there. Then next one is data manipulation. Data manipulation means it is a language that provides a set of to support the basic data manipulation operations. It allows users to insert, update, delete and retrieve data from the database. That means already a table is there, already a database is there, already a relation is there. So in that relation you have to either insert the values, you can update the values. That means you can update values, you can insert values, you can delete and retrieve certain values. आप उसमें जो डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन आप नया टेबल नहीं फॉर्म कर रहे हो. यहाँ पर ऑलरेडी रिलेशन या टेबल जो है वो बना हुआ है. आपने यहाँ पर आकर एक ऑलरेडी टेबल या रिलेशन नहीं बनाया. आप सिर्फ क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यूज़ को कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हो उसकी वैल्यू, या मतलब आप अपडेट कर सकते हो वैल्यू, जैसे पहले कुछ और वैल्यू थी अभी कुछ और, या उसमें नई वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो और कुछ रिट्रीव कर सकते हो देखने के लिए. तो these are the data manipulation. The name itself suggests data manipulation and it is but obvious. We understand very easily. Select means मतलब कुछ ना कुछ select करना, insert मतलब कुछ ना कुछ insert करना, update means कुछ ना कुछ update करना और delete means कुछ ना कुछ delete करना. But here main important part is it delete all the records from the table. All the records from the table. Records का मतलब था वो जो हमने बेसिक ट्यूपल में देखा था उस तरह के रिकॉर्ड. तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड्स. इट कैन डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स. देन नेक्स्ट लैंग्वेज इज डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. तो हमने देखा था DDL, DML और DCL. पहले डाटा बनाया सब, उसके बाद में उसको मैनिपुलेट किया, फिर कंट्रोल. अब कंट्रोल करने के लिए आया था DCL स्टेटमेंट कंट्रोल एक्सेस टू डाटा. Statements control access to data. The privileges assigned can be select, alter, delete, execute, insert, index, etc. Select, alter, delete, execute, index, etc. The privileges assigned, ये बेसिकली करते इट स्टेटमेंट्स कंट्रोल एक्सेस टू डाटा. डेटा जो आपने जो भी स्टोर किया उसको किस किस को एक्सेस रहेगा, दैट इज व्हाट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस पर्टिकुलर कमांड. ये कमांड क्या करता है, ये कमांड है जो आपका डेटाबेस जो आपने बनाया हुआ उसके एक्सेस को वो कंट्रोल करता. इन एडिशन टू ग्रांटिंग ऑफ प्रिविलेजेस यू कैन ऑल्सो रिवोक टेक बैक इट बाय यूजिंग अ रिवोक कमांड. सपोज आपने कुछ परमिशन दी, जैसे आप लोग देखो मोबाइल में कोई ऐप भी आप डाउनलोड करते हो, कुछ भी करते हो, आपको परमिशन मांगता है, तो उसके बाद में आप सेटिंग में जाके वो परमिशन वापस भी
ले सकते हो. सो सेम इज अबाउट द डेटाबेस. व्हेन यू आर मेकिंग अ पर्टिकुलर टेबल और रिलेशन एंड देन यू आर प्रोवाइडिंग सर्टन परमिशंस कि उसमें एडमिन, जैसे आप यूजर बनाओगे अलग अलग, तो एडमिन को क्या उसमें राइट्स है, यूजर 1 को क्या राइट है, यूजर 2 को क्या राइट है, जिसको जो भी आपने परमिशंस दी हुई है तो वो परमिशंस आप वापस भी ले सकते हो, रिवोक. तो परमिशन देने के लिए आपका कमांड है ग्रांट और वापस लेने के लिए रिवोक. अब हम क्या करेंगे, जब प्रैक्टिकल में एक्चुअली कभी ना कभी ये जरूर देख लेंगे कि व्हाट इज ग्रांट एंड हाउ इट इज रिवोक, वो कैसे दी जाती है. बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर थिंग हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कमांड्स देखने हैं वो बेसिकली देखने हैं कि आप डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हो, उसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हो और फिर रिट्रीव कैसे करते हो. और रिट्रीव करने की कई सारी कंडीशंस हैं, like certain mathematical things like sum, average, minimum, max, then aggregate functions, joins and so many things. So that is what we are basically more interested in. वही जनरली कमांड्स बहुत सारे चलते हैं. रेस्ट आर द थिंग्स, दे आर ऑल्सो देयर, बट दैट इज द प्रोमिनेंट वन दैट विच वी हैव टू लुक फॉर. नाउ डेटा टाइप्स. नाउ जब से हम डिस्कस कर रहे थे कि उसमें डेटा टाइप्स क्या होता, तो बेसिकली स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है. स्ट्रिंग मतलब जैसे एक रस्सी को आप लोग स्ट्रिंग बोलते, तो मतलब उसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं, एक स्ट्रिंग है वो, मतलब एक कुछ तो भी एक रस्सी है, उसमें कुछ तो भी कैरेक्टर्स है, कुछ अल्फ़ाबेट्स है, कुछ उसको हमने स्ट्रिंग बोला. तो अब कितने सारे डेटा टाइप्स है हमारे पास. तो यहाँ से अब अपने इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है कि इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ से एक्चुअली आपको समझ में आ रहा है कि क्योंकि अब तक का तो हमने लास्ट यूनिट में इसके पहले देखा हुआ है, यूनिट नंबर 1 में, दैट इज DBMS में, RDBMS में. लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ये यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है. सपोज कि इसमें हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. तो देखिए पहले टाइप का जो डेटा टाइप कैरेक्टर, CHER साइज. अ फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. देखो इसमें क्या क्या रह सकता, लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. द साइज पैरामीटर स्पेसिफाइज द कॉलम लेंथ कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 to 225. डिफॉल्ट इज 1. अब इसकी जो साइज़ है वो 0 to 255, मतलब जो भी कैरेक्टर्स की साइज होती है कि इट इज अप टू द मैक्सिमम साइज दैट कैन कवर की 0 to 255. सेकंड आता वर्कर. वर्कर मतलब क्या है, वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैन कंटेन लेटर, नंबर्स. लेकिन इसमें क्या है, अगर आप कैरेक्टर साइज बोलोगे, कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो उसमें एक फिक्स्ड साइज आ जाएंगी, तो वेरी होना चाहिए कैरेक्टर साइज, इसलिए आप यूज़ करते हैं वर्कर. वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर. द साइज पैरामीटर स्पेसिफाइज the maximum column length in characters can be from 0 to 65,535. कॉलम लेंथ जो रहेंगी कैरेक्टर्स की वो मैक्सिमम कितनी रह सकती है, 0 to 65,535. तो ये होगी वेरकेयर के बारे में. अब देखो आपको पता होगा कि जो वैल्यूज स्टोर होती है कंप्यूटर्स में, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. बाइनरीज दे ऑक्यूपाई सर्टन स्पेस लाइक बीट एंड बाइट. सो in that context when we find the value of these things, तो वेरकार कितना वेरी हो सकता है, 0 to 65,535. सेम फिर बाइनरी, इट इज इक्वल टू कैरेक्टर बट स्टोर्स बाइनरी बाइट स्ट्रिंग्स. द साइज पैरामीटर स्पेसिफाइज द कॉलम डिफॉल्ट इज 1. एक बाइट इसका स्टोरेज हो सकता है का बाइनरी का. उसके बाद में फिर वेरिएबल बाइनरी, फिर टाइनी बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, मैक्स लेंथ 255 बाइट्स. नाउ हियर यू कैन अंडरस्टैंड. मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ कि कुछ ऐसे गिने चुने जो स्पेसिफिक है जो हमको यूज़ करना पड़ेंगे, जिसमें इंटीजर, वेरकर, डेट, ये ऐसे ही मैक्सिमम आपको यूज़ करना पड़ेंगे डेटा टाइप्स जब आप टेबल क्रिएट करोगे. क्योंकि जब टेबल क्रिएट करते हैं आपको स्पेसिफाई करना पड़ता, और डिपेंड कहाँ पर करता है उसका यूज़ कि हमारे पास तो कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, बट विच टेक्स द मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी, कि हमारा पर्पस भी सर्व हो रहा है 100% एंड वी आर गेटिंग द मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी. जहाँ पे स्टोरेज कम है, लॉन्ग रन में ड्यूरेबिलिटी मेरी और पर्पस सर्व हो रहा है, तो वो डेटा टाइप हम लोग यूज़ करेंगे. तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट है, होल्स स्ट्रिंग, मैक्सिमम लेंथ लाइक दिस, देन मीडियम टेक्स्ट, मीडियम बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, लॉन्ग टेक्स्ट एंड सो ऑन. उसके बाद में सेकंड आती है न्यूमरिक डेटा टाइप्स. न्यूमरिक में क्या था, बीट, टाइनी इंटीजर, बूल, बुलियन, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर. तो इसमें का इंटीजर जो डेटा टाइप है वो हम जनरली मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं. मीडियम यहाँ पे देखते हैं बीट, अ बीट वैल्यू टाइप, द नंबर ऑफ बीट्स पर वैल्यू is specified in size. The size parameter can hold the value from 1 to 64. The default value is 1. बीट साइज में हम लोग देख सकते हो कितना था, डिफॉल्ट वैल्यू इज 1. और कहाँ तक आ सकता हूँ, 1 to 64. टाइनी इंटीजर, ये देखिए अभी टाइनी इंटीजर साइज, अ वेरी स्मॉल इंटीजर, इट इज फ्रॉम -128 to 127. Unsigned range is 0 to 255. It varies the specific maximum display width which is 255. It specifies the specific maximum display minus -128 से
127 तक, वो टोटल कितना हो गया 255। तो इतने इंटीजर्स हो सकते हैं। बूल इट इज कंसिडर जीरो, नॉन वैल्यू, बुलियन, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर एंड देन इंटीजर। सो हियर यू कैन सी देयर आर सो मेनी डेटा टाइप्स इन न्यूमरिक। बाद में बिग इंटीजर, फ्लोट। फ्लोट मतलब बेसिकली जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमको एक अगर सपोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो वैसा फ्लोटिंग नंबर है ना, या फिर डेसिमल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, अगर वो सपोज डबल हो या कुछ और है तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कितना आता है, डेसिमल्स के पास कितने जीरो है। तो इस तरह के जो भी हम वैल्यू स्टोर करेंगे, अब हमारे ख्याल में ऐसा चला जा रहा है कि व्हाट डू मीन बाय बेसिकली ये डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब क्या है कि आप जो वैल्यूज स्टोर कर रहे हो, द वैल्यूज दैट यू आर स्टोरिंग, और उसमें कितने टाइप्स है, उसमें फ्लोट है, इंटीजर है, वैरचर हमने देखा, और फिर इसका सबका स्पेसिफिक कुछ तो भी पर्पस है। जैसे फ्लोट जो रहता, अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट स्पेसिफाइड इन साइज, द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज स्पेसिफाइड in the D parameter. The syntax is depreciated in MySQL 8 and it will be removed in future in MySQL versions. ये MySQL में आता है D, तो मतलब D जो साइज है, D मतलब नॉर्मल साइज फ्लोटिंग पॉइंट, टोटल नंबर डिजिट स्पेसिफाइड इन साइज, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज स्पेसिफाइड इन D पैरामीटर्स। तो डेसिमल पॉइंट के बाद में सपोज आपका 8 डिजिट जाता है, 9 डिजिट आते हैं, फिर आपने कौन सा यूज़ करना है, या फिर आपका सिंगल डिजिट डेसिमल के पॉइंट के बाद या डेसिमल पॉइंट के 3 डिजिट आते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स। तो हमको बेसिकली क्या करना है कि ये इंटीजर जो ये कैरेक्टर टाइप से हमको याद नहीं, मतलब हमको याद नहीं रहे तो भी चलता, वी मस्ट हैव अ लिस्ट विद इट, क्योंकि इसकी लिस्ट में से, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जो बेसिक जो हम यूज़ करते हैं कि दे आर यूज्ड मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, यानी मैक्सिमम जो है हम उसी तरह के डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें होता है इंटीजर, बेसिकली वैरचर, डेट एंड सो ऑन थिंग्स। द नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा इज डेटा डेट एंड टाइम टाइप। इसमें क्या क्या टाइप है, डेट है, तो डेट में आप सिंपल देख सकते हैं, एक फॉर्मेट है डी डी वाई 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 एम एम डी डी, ईयर मंथ एंड डेट। दूसरा है डेट टाइम। डेट टाइम में ये क्या आपको बताएगा, आवर्स, मिनट और सेकंड्स। मतलब इसने आपको आपका डेट भी बता दिया, टाइम भी बता दिया। मतलब आपका डेट मतलब ईयर बताया, मंथ बताया, डेट बताया, साथ में आवर्स भी बताया, मिनट भी बताया और सेकंड्स भी बताया। सो इट एड्स इन इट। देन टाइम स्टैम्प। अब देखो टाइम स्टैम्प क्या है, द नंबर ऑफ सेकंड सिंस ईच यूनिक एपॉक, दैट इज YY, MM, DD, HH, MM, SS. The supported ranges from 1970 UTC to this UTC. Automatic initialization updating to the current date and time can be specified using default current timestamp. अब मैं आपको बताता, बेसिकली देखो आप लोग जो हमको रिस्पांस भेजते हो जो अपने MCQ का, तो MCQ का जब हम रिस्पांस कलेक्ट करते हैं तो वो रिस्पांस में ऑलरेडी हमको आपका टाइम स्टैम्प आता है। टाइम स्टैम्प मतलब वो डेट तो आपकी आएंगी, लेकिन कितने बजे, जैसे सपोज आपका 4:55, तो बरोबर 4:55 एंड सम सेकंड्स आई हैव रिसीव्ड दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, तो वो हो जाता है टाइम स्टैम्प। तो वो भी एक टाइप का है डेटा का। उसके बाद में फिर उसके अलग अलग फॉर्मेट है जो कुछ अलग अलग चीज़ें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो दिज आर द बेसिकली डिफरेंट डेटा टाइप्स। अभी डिफरेंट डेटा टाइप्स में कौन से हमने देखा, स्ट्रिंग डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप एंड डेट एंड टाइम डेटा टाइप। ओके, नाउ हाँ, अब चलो अब डायरेक्टली अब अपन यहाँ पर आ गए। वी हैव टू क्रिएट अ टेबल। अब अपने को एक टेबल क्रिएट करना है। तो अपने यहाँ तक सब देख लिए थ्योरी पार्ट। तो टेबल क्रिएट करना है तो हमको उसके लिए कमांड तो पता है, कौन सा कमांड है, क्रिएट। तो अब हमने लिखा क्वेरी उसके लिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। तो हमको लिखना है क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, टेबल, और क्या नाम है उसका, स्टूडेंट। ओके, ब्रैकेट में हमने लिखा कि उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, रोल नंबर। अब रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, रोल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 जो भी होगा, तो वो हमने लिख लिया इंटीजर। उसके बाद में नेम, नेम क्या होना चाहिए आपका, वैरचर। हमने ऑलरेडी देखा कि वैरचर जो है उसमें सारी बातें हैं। तो व्हाट इज नेम, दैट इज वेरिएबल कैरेक्टर, VARCHR, दैट इज वैरचर। तो उसके बाद में वैरचर आ गया। और फिर उसके बाद में एड्रेस। अब एड्रेस में भी है कि आपका इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं आपके एड्रेस में, बट ऑब्वियसली जैसे हमारे एड्रेस में नंबर्स भी रहते और उसके बाद में अल्फ़ाबेट भी रहते, तो फिर ऐसे के लिए हम क्या यूज़ करते, डेटा टाइप हम वैरचर ही यूज़ करते जनरली। फ़ोन इज़ बेसिकली एन इंटीजर। फ़ोन में कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई अल्फ़ाबेट आएगा, तो फ़ोन इज़ एन इंटीजर। सेम वेज एज इज़ एन इंटीजर। ओके, तो हमको क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है, ये उसका फॉर्मेट है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट ब्रैकेट में। उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, रोल नंबर, उसका मतलब जो आपका एट्रीब्यूट है उसका नेम, और उसका फिर डेटा टाइप इंटीजर, कॉमा देके सेकंड एट्रीब्यूट उसका डेटा टाइप, थर्ड एट्रीब्यूट उसका डेटा टाइप, फोर्थ एट्रीब्यूट उसका डेटा टाइप, फिफ्थ एट्रीब्यूट उसका डेटा टाइप, द ब्रैकेट कंप्लीट एंड एन
सेमीकोलन। इसके साथ में फिर ये हमारा कमांड कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पर हमने कमांड दिया था क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और क्या क्या चाहिए आपको उसमें, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन और एज। तो फिर इसका आउटपुट कैसे आएगा, डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाएंगे जिसमें 5 कॉलम्स एट्रीब्यूट्स रहेंगे। क्या क्या है वो, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन एंड एज। तो अभी सिर्फ हमने टेबल क्रिएट किया, अभी तक हम उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। तो डेटाबेस में क्या हो गया, अभी सिर्फ वो टेबल क्रिएट हो गया। अब अगर हमने टेबल क्रिएट किया तो टेबल हमने क्रिएट क्यों किया, क्योंकि हमको उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो फिर वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड है हमारे पास, वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है दैट इज इंसर्ट। वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए जो कमांड है वो है हमारे पास इंसर्ट। अब हम इंसर्ट कैसे करते हैं वैल्यूज, से विल सी द ओके, आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर बट ओके एनीवेज। तो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ये देखो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन एंड एज, वैल्यूज 1 आकाश, अमरावती, मोबाइल नंबर एंड व्हाट एवर इट इज। यानी आपने इसी क्वेरी कैसे लिखी है, हियर यू सी इट प्रॉपर्ली। यहाँ पे देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब पहले इंसर्ट क्या में, स्टूडेंट टेबल में, और ब्रैकेट में क्या क्या इंसर्ट करना है आपको। तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे, रोल नंबर, उसके बाद में कॉमा देके सेकंड एट्रीब्यूट नेम, कॉमा देके थर्ड एट्रीब्यूट एड्रेस, कॉमा देके फोर्थ एट्रीब्यूट फोन, कॉमा देके फिफ्थ एट्रीब्यूट एज, ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पर हमको वैल्यूज इंसर्ट करनी है। आपने बताया कि आपको एक टेबल में इंसर्ट करनी है वैल्यूज, और क्या क्या इंसर्ट करनी है वैल्यूज, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन और एज। अब वैल्यूज कौन सी इंसर्ट करना है उसमें, तो उसमें फिर हमने लिखा 1 आकाश, अमरावती, एक नंबर और 25। तो ये मतलब जो सबसे पहला लिखा रोल नंबर वो हो जाएगा रोल नंबर 1, सेकंड जो वैल्यू आकाश वो हो गई नेम इज आकाश, थर्ड वैल्यू था एड्रेस, एड्रेस हो गया अमरावती, फोर्थ वैल्यू था आपका फोन, ये आ गया आपका फोन नंबर। सो दीज आर द थिंग्स, आई डू नॉट नो व्हाई इट इज नॉट गेटिंग इरेस्ड। ओके, सो अब ऐसे आपने क्या किया 1 2 3 4 सभी के लिए वैल्यूज लिखा। सेम आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हो कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और डायरेक्टली आपने वैल्यूज लिखी 1 आकाश, अमरावती, देन सम नंबर एंड देन दिस। तो ये ऑलरेडी क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जो सीक्वेंस में आपने लिखा है उस सीक्वेंस में वैल्यूज इंसर्ट करेगा। अगर ये वैल्यूज सेम रहेगी तो प्रॉपरली वहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो इसका आउटपुट हमको कैसा मिला, हियर यू कैन सी एक टेबल बना जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन, एज। अब आपने क्या क्या वैल्यूज इंसर्ट की थी, तो जो वैल्यूज आपने सबसे पहले लिखी थी वो रोल नंबर में आई, सेकंड जो लिखी वो नेम में आई, थर्ड एड्रेस में, फोन एंड एज। तो ऐसे आपने 1 2 3 4 4 अलग अलग वैल्यूज इंसर्ट करी थी, और वो वैल्यूज प्रॉपरली वो टेबल में वहाँ पर आ गई है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट द वैल्यूज इनटू अ पर्टिकुलर टेबल। इस तरह से फिर हम टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। अब उसके बाद में फिर जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम ये वैल्यू इंसर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम में से हमको इसमें कुछ ना कुछ आउटपुट निकालना है, वैल्यू रिट्रीव करना है, इसीलिए हमने इसमें वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट की है। तो फिर रिट्रीवल के क्या क्या प्रोसेस है, रिट्रीवल के कौन से कमांड्स है, तो व्हाट विल डू, विल सी दोज कमांड्स ऑफ रिट्रीवल इन द नेक्स्ट लेक्चर। वो जो कमांड्स है फिर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। So today we have just seen basically what do you mean by RDBMS, what do you mean by DDL, DML, DCL commands, what are the different kinds of data bytes, what do you mean by bytes, what do you mean by bits, what is the storage capacity, and then we have seen the actual implementation of a create command. Okay, so then we'll stop here. I'll see you in the next class. Till then, thank you class. Good day. Jai Hind.